everyone, welcome to GeoIS. Today we will be discussing the directive principles of state policy which is enshrined in part 4 of our constitution. Now before going into details, let me just cover with you what we've already done in the past. So I'm pretty sure that all of you must have gone through part 2 of the constitution that deals with citizenship. After this, we had also dealt with part 3 of the constitution that dealt with fundamental rights. So today we are going to do part 4. Okay, so now if you remember, we had discussed fundamental rights. Let me give you a small way of understanding what directive principles are and what fundamental rights are. Now, fundamental rights were given in the Constitution of India. Okay, so they were mentioned in the Constitution of India and they were basically guaranteed to the citizen, right? They were guaranteed to the citizen or to the individual against the state. That means if the state would do anything arbitrary, the citizen can actually go to the courts, enforce his fundamental rights and move it against the state and get his fundamental rights reinstated for him, right? So they were basically a way in which we were protecting, the constitution was protecting the individual from the state. Okay, is that clear to you? So just think of it like this: fundamental rights were guaranteed by the Constitution of India to an individual against the state. Okay, to an individual against the state if the state does anything arbitrary, if the state does anything against him. Take for an example and try to understand. So there is an example of Article 14. Let's take up Article 14 and understand what happens. So in Article 14, the Constitution of India is telling the state that you have to give equality, equal protection of law. You have to give equal protection of law and equality before law to all your citizens. So you have to give equality before law and equal protection of law to all your citizens, and none of your citizens, you cannot actually discriminate between like citizens. Perfect. So what are we talking about over here? So we are saying that fundamental rights are guaranteed by the constitution to an individual, which is enforceable against the state. It protects the individual against the arbitrary action of the state. Perfect. Where is it mentioned? It is mentioned in part 3 of the constitution. Let us understand what directive principles are. Now directive principles are also mentioned in the Constitution of India. So the directive principles of state policy are mentioned in the Constitution of India. It is mentioned in part 4 of the Constitution. Okay, it is mentioned in part 4 of the Constitution. It is also it's also directions given by the Constitution of India. It is given to the state for the betterment and the protection of individuals. So do you understand that it is almost the same as our fundamental rights? So if you take this as A, fundamental rights as A and directive principles as B, both of them hold almost the same definition. So we can clearly say, right, that A is equals to B and B is equals to A. So like both of them are like rights itself. Yes or no? Both of them are like rights. Both of them are actually rights which a citizen has from his state, and it is guaranteed by the constitution. So both of them are the same things. So if you get a question like this, is directive principles of state policy a kind of right which is given to the citizens by the constitution? Yes, they are rights because they are given by the Constitution of India. It is enforceable against the state, and it is enforceable against the state, and it is actually guaranteeing citizens a certain way of life. Okay, now let's go forward and see what happens after this. Now, let us try to understand how directive principles of state policy works. Okay, let us understand one thing. For example, I'm an individual. Okay, my name is X, and I have a son and I have a daughter. Okay, I have a son and I have a daughter. Now one day my son comes to me and he tells me
that mom, I want to take your car and I want to go for a long drive with my friends. I tell my son, okay, take your car and go, take my car and go have a good time. Now, at the same time, my daughter also comes and she tells me that, mom, I want to take your car and I want to go out with my friends. So I tell my girl, okay, take my car and go out, enjoy yourselves. So I had two cars. Both my children have been given equality. Both my children have been given equal freedom. So this happened because I had the intention to treat both of them in the same way, right? So I have the means, I have the money, I have the cars, I am allowing both my children to go out. I have very good intention. Now take for example that one day my son comes to me and tells me that, mom, I was mom, I want to go out, I want to study in a very good engineering, मैं बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ और मुझे आईआईटी में जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, आई नीड अराउंड 20-30 लाख रुपीस और मैं वहां जाके पढ़ना चाहता हूँ. तो मैं बोलती हूँ, ओके बेटा, पैसे लो और चले जाओ, टेक योर मनी एंड गो. नाउ माय डॉटर कम्स टू मी एंड शी टेल्स मी, ममा, मुझे एमबीबीएस करना है और मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए. अब मैं अपने बेटी को बोलती हूँ, छोड़ो यार, तुम क्या जाओगी, तुम तो लड़की हो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठो, खाना वाना बनाओ, फ्यूचर में तुम्हारी शादी वादी कर देंगे. इसका मतलब क्या था कि मेरे पास पैसे थे बट मेरा इंटेंशन नहीं था. सो यू नो, वेन एवर यू आर गिविंग एनीथिंग टू अ पर्सन एंड वेन एवर यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू अ पर्सन, इफ यू हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसे हो तो आप वो चीज उसे दे सकते हो, आपके पास सामान नहीं हो तो भी आप उसे दे सकते हो. तो दिस वॉज माई इंटेंशन कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ. अब और एक एग्जाम्पल लीजिए, समझ लीजिए, एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मम्मा, मैंने सपने में देखा है ना कि आपने मुझे एक ऑरेंज कलर की लंबोर्गिनी कार खरीद के दी है. ओके, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कि मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि मम्मा, बाय मी, मतलब मैंने सपने में देखा है कि आपने मुझे एक लंबी सी लंबोर्गिनी कार खरीद के दी है. ओके, सो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, बेटा, मतलब तुमने सपने में देखा है, ठीक तो है, और मेरा काम है तुम्हारे सारे सपने पूरा करना, बट मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें लंबोर्गिनी कैसे दूं. तो अब मेरा बेटा ना मुझसे बहुत गुस्सा हो जाता है, मुझे बोलता है कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करती. बट इट्स नॉट अबाउट मेरा प्यार, मेरा इंटेंशन है, मेरा ये इंटेंशन है कि मैं फ्यूचर में अपने बेटे को एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा लंबोर्गिनी कार दिला दूं. बट मेरे पास इसका इकोनॉमिक मीन्स नहीं है, राइट? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपने बेटे को एक लंबोर्गिनी कार खरीद के दूं. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरीथिंग द सेम वे, द सेम फंडा इज टू बी अप्लाइड इनटू अ स्टेट. लेट मी टेल यू हाउ. देखिए, in a particular state, in a particular democracy, what you will see is that there are four types of rights that every citizen enjoys. Okay, there are four types of rights that every individual enjoys. Okay, what are these four rights? Let me tell you. The first right which any individual will enjoy is civil right. Then there will be political rights. Then you have social rights. Then you have economic rights. अब ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते क्या हैं? देखिए, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के साथ बात करते हैं. जैसे कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 याद कर लो, राइट? हमारे इंडिविजुअल की फ्रीडम के साथ बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारी चीजों पर वो हमें फ्रीडम देता है, राइट? हमें ये एक माइनॉरिटी को, समझ लीजिए, ये अलाउ किया जाता है कि आप अपने पसंद का, अपने लैंग्वेज के लिए आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन खोल लो, आपके हम रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. तो हर इंडिविजुअल को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या करता है? एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को बचाता है अगेन फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट उनके इन राइट्स पे कभी भी किसी तरह का रोक ना लगा सके. ये इंश्योर करती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, उनका उनका सिविल और पॉलिटिकल लाइफ जो है, उस पर कोई रिप्रेशन ना आए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. एक एग्जांपल ले लो, समझ लो इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटीज है, राइट? तो आप देखो, माइनॉरिटीज के राइट्स को यूजुअली एक मेजॉरिटी बहुत ज्यादा ऑप्रेस करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दे दिया कि भाई आप माइनॉरिटी हो, कोई बात नहीं, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे. तो उन्हें प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29, 28, 29 एंड 30 दे दिया गया. सो यू अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी इंडिविजुअल को, माइनॉरिटी हो, औरत हो, यू आर अ किड, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो दे दिए गए हैं.
अब ये जो राइट्स है, दीज राइट्स आर बेस्ड ऑन इंटेंशन। समझ लो, मैं एज अ कंट्री मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे यहाँ जितने लड़के हैं उनको लड़कियां जितना बराबरी दिया जाए, राइट? दैट मीन्स दैट द गर्ल एंड द गाय एंड द बॉयज इन द कंट्रीज आर गिवन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, कि ऐसा ना हो कि वो कहीं काम करने जाए तो जेंडर बेस्ड उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े, ऐसा ना हो कि लड़कियों को डाउरी देना पड़े, ऐसा ना हो कि लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ना मिले, ऐसा ना हो कि पिछड़े जातियों को हम जबर और पीछे की तरफ ढकेल दे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल। तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो जिस तरह से मैं अपने बेटे और बेटी को इक्वल इक्वल तरीके से ट्रीट करती हूँ, दोनों को मैं बहुत ज्यादा, मैं दोनों को मेरा इंटेंशन है कि मैं दोनों को गाड़ियां दे रही हूँ, दोनों को बोल रही हूँ जाओ घूम कर आओ। इन द सेम में जब मेरा बेटा बेटी अगर मेरे पास आता है और उसमें से मैं बेटे को बोलती हूँ तुम पढ़ लो और मैं बेटी को बोलती हूँ नहीं तुम मत पढ़ो, तो दैट इज ऑल अबाउट माई इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन क्या है। ओके, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब समझ लीजिए मेरा बेटा मेरे पास एक दिन आकर बोलता है ममा बाय मी अ लंबोर्गिनी। अब मेरा मन तो है उसे उसे ये देने का, यानी मेरे पास इंटेंशन तो है, आई वांट टू गिव हिम अ वेरी गुड कार, वेरी एक्सपेंसिव कार, बट मेरे पास इकोनॉमिक मींस नहीं है, तो मैं वो चीज उसे कैसे दे दूंगी? That is the reason why social and economic rights have to be based on a person's on the country's pocket, also on the basis of availability. So what are the two things that are discriminating? देखिए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर इंटेंशन बेस्ड राइट्स, इसीलिए हमारे फोर फादर्स ने इसे फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में एंश्राइन कर दिया और स्टेट को बोला तुरंत अभी के अभी इस पर आपको एक्ट करना है, अभी के अभी आपको हर इंडिविजुअल को इक्वालिटी देना है, हर इंडिविजुअल को राइट्स देना है, ताकि हमारा जो कंट्री है वो प्रॉपर तरीके से एक डेमोक्रेसी बन जाए। वेरी गुड। उसके बाद हमें पता था, देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ independence, India was a very poor country. We all knew India was a very poor country. और इंडिया के पास बहुत सारी चीजें करने का उतना इकोनॉमिक मींस नहीं था। अलॉन्ग विद दैट ऐसा सिचुएशन भी नहीं था, अगर आपको याद है बहुत सारे कम्युनल राइट्स वगैरह हुए थे। अब इन सारे कम्युनल राइट्स की वजह से इमीडिएटली अगर कुछ लॉज लगाए जाते तो वो लॉज डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो पाते, और उन चीजों को लेके इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो जाती। इसीलिए वो जो राइट्स थे, जो इंटेंशन तो था करने का, बट बिकॉज ऐसा सिचुएशन होकर रखा था कंट्री में कि उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए क्या किया गया कि उन्हें एनश्राइन कर दिया गया पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और पार्ट 4 में कर दिया गया। दैट मीन्स हमारे जितने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ऑल ऑफ देम हैव बीन गिवन टू अस इन फंडामेंटल राइट्स एंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सोशल राइट्स, हमारे इकोनॉमिक राइट्स जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन एंड अवेलेबिलिटी इन द नेशन, दे आर एनश्राइंड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप ये वाला पोर्शन सबको क्लियर है। ऑलराइट, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, so fundamental rights, as we've already said, is enshrined in part 3 of the constitution and not in part 4. Directive principles is taking care of our social and economic rights. Perfect. Now let's go forward. देखो हमारे आर्टिकल, अब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का बात सुनना। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 डाला गया एंड पार्ट 4 डाला गया। पार्ट 3 में हमें दिया गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और फंडामेंटल जो राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेते हुए इट इज गोइंग अप टिल आर्टिकल 36, ठीक है। और उसके बाद हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर, सॉरी दिस इज 35, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक चलता है। मैडम आपने सिमिलैरिटी तो बता दी कि दोनों जो है they all are written in the constitution of India, both of them are constitutional in nature, both of them are given to the citizen, all of them are given to the state, against the state, to a citizen, और सिटीजन को स्टेट के आर्बिटरी एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। दोनों का ये डेफिनेशन तो पक्का है और हमें सिमिलैरिटी समझ में आ गई है। मैम देन टेल मी व्हाट, फिर आपने ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है
फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव मतलब दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर भाई स्टेट ने अपना कोई काम नहीं किया है, सिंस दे आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल, इन्हें हम अपने कोर्ट्स में एनफोर्स कर सकते हैं, यानी दे आर एनफोर्सेबल, ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर मेरा ये कंप्लीट नहीं होता है, मैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, और मेरा जितना राइट्स है वो मेरा जस्टिशिएबल भी होगा। और ये जो मेरे राइट्स है दे आर बेसिकली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ऑन द अदर हैंड मेरा पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है विच इज बिटवीन आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। ओके, ये इंडिविजुअल की अपलिफ्टमेंट की तरफ के बारे बात कर रहा है। सिंस दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर व्हाट, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, we cannot go to the courts and ask the government कि उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं फॉलो किया। we cannot do that, okay, they are non justiciable in nature, ठीक है, they are non justiciable nature, ठीक है, and they are social and economic rights। ये तो हो गया हमारा राइट्स का डेफिनेशन, परफेक्ट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मैम फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर एब्सोल्युटली बाइंडिंग बाय नेचर, ये तो हमें पता है। See, I'm answering a very important mains question. Try to understand. Is directive principles of state policy also binding? क्या ये binding है मैम? ये non enforceable है, non justiciable है? Yes, 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 yes. Directive principles are binding on the government. मैंने क्या बोला? Directive principles of state policy are binding on the government. ओके मैम, चलिए अब हमें अच्छे से बताइए कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि राइट्स कौन कौन से हैं। नाउ लेट अस डाइव इन एंड अंडरस्टैंड कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे वो कहाँ थे और किस तरह से आए हैं। ओके, विल अंडरस्टैंड कि इनका काम क्या है। द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी विल डील विद टुडे इज आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है दैट द स्टेट shall have the same meaning as in part 3 of the constitution. So guys, if you remember, that means ये constitution को बोल रहा है कि भाई देखो state का जो definition है वो हमने already part 12 में article 12 में दे दिया है, और ये क्या है। So if you remember, article 12 of the constitution, article 12 which is written in part 3 of the constitution defines a state for us. So part 3 says that the state includes the government and parliament of India. It includes the government and parliament of India. Okay. It then includes the government and a legislature of the state. इसके अलावा स्टेट में सारे के सारे लोकल अथॉरिटीज भी रहेंगे, all the local authorities in the local authorities within the territory of India, right, and under the territory of India. तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि भाई हमारा स्टेट का डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो आर्टिकल 36 ने भी इसे उसी तरीके से एनफोर्स करके रखा हुआ है कि भाई हमारा जो स्टेट का डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, राइट। सो द डेफिनेशन आर्टिकल 36 विल हैव अ डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, उसमें आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ स्टेट रहेगा, और इट विल बोथ ऑफ देम विल बी द सेम। अब आप बोलेंगे मैम ये स्टेट फॉर्म कैसे होता है, ये स्टेट बनता कैसे है। याद है आपको, हम हर बार हम इलेक्शंस करते हैं। इलेक्शन से हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेट को चुनते हैं। we choose who is going to be our state, right? We choose who is going to be a part of the government, we will choose who is going to be a part of the parliament, we will choose who is going to be a part of the legislature, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस करके हमारे प्रेसिडेंट या हमारे ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट करते हैं, राइट। दिस इज हाउ द स्टेट इज यूजुअली सिलेक्टेड। अब आप आ जाइए नेक्स्ट वाले आर्टिकल में। नाउ आर्टिकल 37 को अच्छे से एक बार रीड करते हैं, बिकॉज इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ओके, now the provisions mentioned in this part shall not be enforceable by any court. तो हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, राइट, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, ना ये एनफोर्सेबल है ना ये जस्टिशिएबल है। मतलब अगर ये नॉन एनफोर्सेबल होंगे
तो कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता कि भाई आपने तो इसका हमारे गवर्नमेंट तो ये काम नहीं किया था, बिकॉज अगेन ये चीज आपको याद करना है कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी तभी कर सकता है जब उसके पास इंटेंशन भी हो और उसके साथ उसके पास अवेलेबिलिटी भी हो। चलो ये पार्ट हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। बट द प्रिंसिपल्स लेड देयरइन are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। मतलब ये तो बोल दिया है यार कि ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कोर्ट में एक इंडिविजुअल जाके एनफोर्स नहीं करेगा, लेकिन ये जो है shall be यानी कि एक तरीके से आर्टिकल 37 has made it binding on the state to follow these principles। so आपके पास जो फर्स्ट वर्ड हमने बोला है कि बाइंडिंग है, कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 37 पे दिया हुआ है। हमने अगर बोला है कि ये एनफोर्सेबल है तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इट हैज बीन वेरी आर्टिकल 37 की भाई ये एनफोर्सेबल नहीं है, राइट? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। समझ लो, एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा चले गए, राइट? ही गोज टू कनाडा। कनाडा में वो जाके देखते हैं कि वो बोलते हैं ना मैरिजुआना, यानी जिसे हम जैसे मैरियाना बोलते हैं, वहां पर मैरियाना लीगल है। तो वो देखते हैं, वो बड़ा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पे तो ड्रग्स लीगल है, तो इंडिया में हमने ड्रग्स को इलीगल क्यों कर दिया है? हम इंडिया में भी ड्रग्स, फिर वो इंडिया आते हैं, इंडिया में आके सबको बोलते हैं चलिए हम ड्रग्स को भी लीगल कर देते हैं, लेट अस मेक मैरिजुआना इन इंडिया आल्सो लीगल। मगर ये वो नहीं कर सकते, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोला हुआ है कि कोई भी नशीली पदार्थ को, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, किसी भी नशीली पदार्थ को आप इंडिया में नहीं ला सकते हो, आप इसे लीगल नहीं कर सकते हो। तो पीएम साहब जो कनाडा में होता है वो सिर्फ कनाडा में ही रह जाएगा, राइट? तो इवन दो ये नॉन जस्टिशियबल है, लेकिन हमारे फोर फादर्स का जो विजन है इंडिया को लेके, हमारे फोर फादर्स ने जो विजन रखा है उस विजन को पूरी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिख दिया है। और आर्टिकल 37 से ये तो पक्का हो चुका है कि ये बाइंडिंग है। तो पीएम साहब अगर चाहेंगे भी, इवन दो वो स्टेट के नतीजा है, एक तरीके से उनके ऊपर एक रोक लग जाती है थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो अब वो ड्रग्स को इंडिया में लीगल नहीं कर सकते। ही कैन नॉट मेक मैरिजुआना इन इंडिया लीगल इवन दो वो कनाडा में लीगल है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो द पॉइंट इज दैट इवन दो इंडिविजुअल उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसे लगा नहीं सकते, इवन दो उनके पास पावर है, बिकॉज उनके पावर पर एक तरह का ये रुकावट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑलराइट, perfect. Now let's go to the next article. Now, Article 38. Article 38 बोलता है that we should ensure a social order for the promotion of welfare of the people. देखो, अब ये जो टर्म है ना वेलफेयर, या जो ये जो टर्म है वेलफेयर, और ये जो आर्टिकल 38 है, it is also known as keystone. It is known as the keystone of part 4 of the Constitution of India. Try to understand. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 38 दिया हुआ है, एंड आर्टिकल 38 is said to be the keystone of part 4 of the Constitution of India. Let us try to understand. तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले एक बार ये देख लेते हैं। The state shall strive to promote the welfare of the people, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economical and political shall inform all institutions of the national life. आपको अगर याद है तो हमारे if you remember we have studied the preamble, right? I'm pretty sure you must be remembering कि हमने preamble को पढ़ा है, राइट? और प्रियम्बल में अगर आपको याद है ये चीज लिखा हुआ है, there is a line which says that the state shall ensure to give justice to its individual, और ये जो जस्टिस होगा वो सोशल होगा, इकोनॉमिकल होगा और पॉलिटिकल होगा। ये बात जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रियम्बल जो है इट्स अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल में ये वर्ड कहाँ से गए हैं? इट हैज गॉन थ्रू आर्टिकल 38। यू कैन राइट इट डाउन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल में ये वर्ड कहाँ से आया, सो इट हैज कम फ्रॉम
आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इन विच वी से दैट स्टेट जो है विल स्ट्राइव टुवर्ड्स इंश्योरिंग, स्टेट ये कोशिश करेगा कि वो हर इंडिविजुअल को जस्टिस दे पाए इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, in terms of economical justice and in terms of political justice. Very good. Now let's go forward. अच्छा, अब आप देखो आर्टिकल 38(2) देखो याद रखना, ये वाला जो आर्टिकल है दिस वाज इंसर्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो मोरारजी देसाई जी के टाइम पे आया था। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 को इंसर्ट किया। गाइस याद रखना, जब भी आप या कभी भी इन द फ्यूचर भी अगर आप देखते हो ना कि आर्टिकल 38 जो है वो कभी भी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जस्ट मार्क माय वर्ड्स कि आर्टिकल 38 जो है वो कभी भी एट ऑल इट इज़ बीइंग अफेक्टेड, ओके, या उसे किसी तरह भी टच किया जा रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहीं से भी अगर आप देखते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स में कभी भी डिफरेंस आ जाए तो अपने कान खड़े कर लेना। इसका रीजन मैं अभी आपको समझाती हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। द स्टेट शैल in particular strive to minimize the equalities in income, very good, and endeavor to eliminate equalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of individuals or of people residing in different areas or engaged in different vocations. अब आराम से सुनो इस चीज को, मैं सबसे ज्यादा इस चीज का कोशिश करूंगा कि लोगों का इनइक्वालिटी जो चल रहा है, इनकम में जो इनइक्वालिटी चल रहा है, मैं उसे इक्वालिटी देने की कोशिश करूं। बहुत अच्छी बात है सर, तो ये आप कैसे करोगे? ये मैं करूंगा इनकम टैक्स के रेट्स देकर। व्हाट विल आई डू? आई विल डू इनकम टैक्स रेट्स। मैं आईटी के रेट्स करूंगा, मैं देखूंगा किसके बहुत ज्यादा इनकम है, जिसके ज्यादा इनकम होगा टैक्स के नाम पे उनसे मैं सारे पैसे उनके लूंगा और उन्हें बाकी लोग जिनका इतना सैलरी नहीं है उन्हें इक्वालिटी देने की मैं कोशिश करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड गाइस फ्रॉम वेयर डिड वी गेट वेयर वी गॉट इनकम टैक्स रेट्स? अच्छा, फिर आप दूसरा लाइन पढ़ो, मैं कोशिश करूंगा स्टेटस में, फैसिलिटी में एंड अपॉर्चुनिटीज में लोगों को मैं इक्वालिटी देने की कोशिश करूं। तो ये जो मेरे सारे के सारे रेट्स होंगे दे वुड बी कॉन्फिस्केटरी। जैसे अब आपके यहाँ आईटी वाले आते हैं और आईटी वाले आपकी कंपनी में अगर आकर एक इस तरीके का मूवमेंट करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि भाई अब ये लोग जो हैं आपके इनकम को पूरी तरीके से जब्त करने वाले हैं। इफ यू रिमेंबर कॉन्फिस्केटरी रेट्स, आप अक्सर पेपर में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे आते हैं, एक पर्टिकुलर ऑफिस में घुसते हैं, उस ऑफिस में घुसने के बाद उनका कंप्यूटर सीज कर लेते हैं, उनके जितने कैश वहां पर अगर एक्स्ट्रा पाया जाता है उसे सीज कर लेते हैं। एवरी सेकेंड डे आप पेपर में देखते होंगे कि आप ये देखते हो कि 100 करोड़ कहीं पकड़ाए गए, कहीं 50 करोड़ पकड़ाए गए, कहीं 2 करोड़ पकड़ा गए हैं, कैश पकड़ाया है। तो गवर्नमेंट इसको पूरा सील कर देता है। आईटी प्रोफेशनल्स या ईडी प्रोफेशनल्स वहां पहुंचते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले लोग वहां पहुंचते हैं और सारे पैसे को गवर्नमेंट के नाम पे जब्त कर लेते हैं, राइट? सो इसका मतलब क्या है, ये कहां से स्टार्ट होता है? How was this given validity in the government? It was given validity by introducing Article 38 subclause 2 in our constitution, which says that the state shall in particular strive to minimize equality of income. It shall endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, and it will also meet people engaged in डिफरेंट वोकेशंस। मतलब सबको किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, हम वहां पर आएंगे। इनइक्वालिटी इन इनकम होगा तो आपके पैसे हम जब्त करेंगे और उसे हम बाकी लोगों में बांट देंगे। सो दिस वाज अ वेरी नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि इस टाइप की चीजें आए तो कान खड़े कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत धड़ाके से और बहुत मेजर चेंजेस अब लाने वाला है। Now let's go to Article 39 of the Constitution. Now Article 39 क्या बोलता है? Article 39 says that certain principles of policy should be followed by the state. The state shall, in particular, direct its policy towards securing
द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमन, ठीक है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, परफेक्ट। उसके बाद आर्टिकल 39 बी, the ownership and control of material resources of the community are distributed as best to subserve the common good, right? What are that the operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment, right? मतलब आप ऐसे समझो इस चीज को भाई, हम आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होंगे, ऐसा प्रोडक्शन नहीं करने देंगे आपको कि कॉमन लोग जो है वो परेशान हो जाए। अब एक एग्जांपल समझो, इंडिया में देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट, बट द नेम जो सारे कंपनीज को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखता है, दैट प्लेस इज नोन एज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज नोन एज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इट टेक्स केयर ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोई भी लोग जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उस चीज का ध्यान रखेगा, ठीक है। जैसे ऐसा हो जाए कि कोई इंसान आपको आकर बोले एक काम करो, अब मैं चावल आपको 10 पैसे पर किलो पे दे दूंगा, और बाकी जगह नॉर्मली रेट 20 रुपीज अ किलो चल रहा है, और आपको कोई बोलता है मैं 10 पैसे पे दे दूंगा, तो ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि इट इज ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। वो किसी को ऐसा करेगा कि कोई भी बिजनेस जो है वो मार्केट में मोनोपोली नहीं बच जाए। एग्जाम्पल आप जियो का ले लो, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियो। जियो ने क्या किया, पहले आए 2 सालों तक उन्होंने पूरी तरीके से आपके मार्केट में सब कुछ फ्री कर दिया, दे कंप्लीटली मेड इट फ्री, सारे सर्विसेज मार्केट में फ्री कर दिया। दैट वाज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, राइट। लेटर ऑन जियो ने इस मामले पे एक केस भी लड़ा था, जियो का एक केस भी हुआ था इस मामले में। सो इफ यू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसमें ये बोला गया है कि मैन एंड वुमन जितना काम कर रहा है दे शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, परफेक्ट। उसके बाद उन्होंने बोला है लेबर वेलफेयर के बारे में बात की है। सो आर्टिकल 39E टॉक्स अबाउट लेबर वेलफेयर, कि भाई आपका जितना भी वर्कर है उनका हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान आपको रखना होगा, औरत हो या मर्द हो, आपको उनको इक्वालिटी देना पड़ेगा। एंड द टेंडर एज ऑफ children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength। अब आराम से इस बात को सुनना भाई, मुझे अपने बच्चों को to protect the tender age of children, okay, to protect the tender age of children such that they are not abused, हमने निकाला है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, द पॉस्को एक्ट। आपने आई एम श्योर ये चीज पढ़ा होगा, राइट। और ये चीज हमने गारंटी किया है आर्टिकल 24 से। आपको अगर याद है फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास आर्टिकल 24 आया था। आर्टिकल 24 में डायरेक्टली बोला हुआ है दैट देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का हो, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और एनी माइन, ठीक है। ऐसा कोई हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट उस बच्चे को नहीं देना है। अगर कोई भी इस बच्चे को एम्प्लॉय करता है, ऐसे बच्चे को, और हैजर्डस काम उनसे करवाता है, दैट पर्सन शैल बी पुट इन फॉर डिटेंशन। एक तरीके से उन्हें फाइन भी भरना पड़ेगा और उन्हें डिटेंशन भी किया जाएगा। सो दिस फंडामेंटल राइट हैज बीन एनफोर्स्ड इन इंडिया थ्रू आर्टिकल 24 थ्रू द पॉस्को एक्ट। यू कैन कीप अ मेंशन ऑफ दिस, ओके ओके। मैडम ये आर्टिकल 24 आया कहाँ से? देखो याद करो, मैंने आपको बोला है ना, इंडिया में कोई चीज ऐसे भी नहीं होता, हर चीज के ऊपर पीछे बहुत सारा काम हुआ रहता है। सो देयर वाज दिस केस व्हिच वाज नोन एज द गौरव जैन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। गौरव जैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस की वजह से हमारे पास पॉस्को एक्ट आया था, ऑलराइट। तो जैसे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। अच्छा, अब आप एक फाइनल वर्ड आप देखो यहाँ पर, देयर इज अनदर वर्ड ओवर हियर व्हिच सेज कि किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जाएगा। द सिटीजंस शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज। इसीलिए इंडिया में आ गया द टर्म ऑफ रिटायरमेंट, कि भाई आप 60 के हो गए हो, बहुत ज्यादा 62 तक काम करो, उसके बाद आप काम छोड़ दो।
इस एज के बाद आपको ना अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, बिकॉज अब आप इस काम को करने के लिए आपको बहुत सारा फिजिकल लेबर देना पड़ेगा. सो इट इन अ वे मेक्स रिटायरमेंट लीगल, राइट? ओके. अगर आपको याद है हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो हमारे आर्टिकल्स है, if you remember in when we were doing fundamental rights, we had spoken about article 17, right? uh, Article 17 which spoke about removal of untouchability. फिर हमने आर्टिकल 23 and 24 के बारे में बात किया था, राइट? which does not allow बेगार to happen, and आर्टिकल 24 which protects the children. और आपको अगर याद है मैंने ये भी बोला था कि ये जो सारे आर्टिकल्स है, राइट, दे नीड लॉज टू एनफोर्स देमसेल्फ. ये लॉज चाहिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी आपके खिलाफ स्टेट तो नहीं करेगा, कोई इंडिविजुअली करेगा. तो इन्हें एनफोर्स करने के लिए हमें लॉज चाहिए, और इन लॉज को बनाने के लिए स्टेट को डायरेक्टिव्स चाहिए, राइट, डायरेक्शंस चाहिए. और ये डायरेक्शंस उन्हें मिल गए आर्टिकल 39 से, राइट? आर्टिकल 39 ने उन्होंने ये डायरेक्शंस दे दिए कि बच्चों को बनाने के लिए उन्होंने ये लॉज बना दिया. परफेक्ट. ओके. नाउ अब फाइनल वाला 39F को पढ़िए. Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment, राइट? यानी बच्चों को आपको मॉरली और मटीरियल तरीके से सपोर्ट करना होगा. डू यू अंडरस्टैंड कि अब जो लोग चाइल्ड सपोर्ट मांगते हैं, जैसे जब डाइवोर्स होता है, द पेरेंट्स हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट. सो ऑल दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 39F. चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल एंड व्हाट हैपेंस. सी नाउ वी हैव आर्टिकल 39A. ओके. It was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act. Okay. Now before understanding, I want you to understand a certain concept. अगर आपको याद है हमने फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे we had discussed Article 20, we had discussed Article 21 and we had discussed Article 22. Now Article 20, 21 and 22 says में एक principles of natural justice आता है, and that principles of natural justice is known as Audi Alteram Partem, right? Alteram Partem यानी listen to the alternate party, listen to what the other party has to say. Perfect. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद there is एक और right हमें देता है principles of natural justice कि आपके पास एक lawyer होना होगा. You have right to lawyer, right to have a lawyer. मगर ये जो लॉयर हमें दिया जा रहा है ऑन बेसिस ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 20, 21, 22, ये जो लॉयर है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉयर है. दिस लॉयर इज नॉट अ सिविल लॉयर. यानी समझ लीजिए एक औरत मेरे पास आती है एंड दिस लेडी, इन्हें ना घर पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है. शी अपने ससुराल में रहती हैं. So there is, take an example that there's a lady and she is really tortured in her house. बहुत ज़्यादा इन्हें टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता है. मारते पीटते नहीं है बट टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है. मतलब इन्हें रहने नहीं दे रहे, इन्हें खाने नहीं दे रहे, इन्हें पीने नहीं दे रहे हैं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं. इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं. ओके. अब ये औरत क्या करती है, बहुत बड़ा केस है इनके साथ, मैरिटल वायलेंस का केस हो रहा है. समझ लो इनके पति इनके ऊपर बहुत मारा पीटी करते हैं इनके साथ, और ये औरत अब कोर्ट में आती है. ओके. अब ये केस तो क्रिमिनल केस नहीं है. ये जो केस होगा जिसमें ये लेडी को जिसमें इस लेडी ने बहुत सारा मैरिटल वायलेंस अपने पति के साथ फेस किया है, दिस केस इज अ सिविल केस, राइट? सो अगर बाय द वे ये कोर्ट में आती हैं और आकर बोलती हैं कि भाई मुझे एक लॉयर चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस केस को लड़ूं, तो भाई नॉर्मली अगर आप समझो, आप नॉर्मली अगर इस चीज को समझो तो जो लोग होंगे हम इन्हें बोले, जो ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट वाले बोलेंगे ना ये यार ये तो सिविल केस है, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल केस, जाओ जाओ हम तुम्हें लॉयर नहीं देते. ये चीज बहुत ज्यादा गलत है. तो अब आती है इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी आती है, याद करिए ये चीज पहले होता था. नाउ अब ये लेडी एक बार समझ लीजिए चली गई इंदिरा गांधी के पास. इंदिरा गांधी वाज अ वेरी प्राउड पार्लियामेंटेरियन, राइट? तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों होगा, अगर क्रिमिनल केसेस में हम लोगों को एक लॉयर गारंटी कर रहे हैं तो अब भाई अभी 1975 चल रहा है. इंदिरा गांधी ने बोला कि अभी 1975 चल रहा है,
तो अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है। पहले इंटेंशन तो था बट अब हमारे पास अवेलेबिलिटी भी आ गया। बहुत हो गया, बहुत हो गया गरीब रहना। अब एक काम करते हैं, अब हम लोगों को जो गवर्नमेंट है दैट विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू अ क्रिमिनल ऑल्सो as per the fundamental rights, and we will also give our citizens free legal aid। ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 39A को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, एंड थ्रू दिस शी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज नोन as the Legal Services Authority Act of 1987। Legal Services Authority Act of 1987। आप लोगों ने नालसा का नाम सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राइट, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। So she laid the bedrock of that, and the NALSA now provides civil as well as criminal protection. It gives a civil as well as criminal lawyers to all the citizens of the country. So Article 39A is fulfilled by the NALSA Act. Okay. गाइस, हमें यहाँ पे कैसे ही पढ़ना है, आपको ये समझना है कि भाई ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था ये नए नए में आया था, और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के बहुत सारे चेंजेस इंडिया में किए गए हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हमें ये चीज जानना चाहिए। सो आर्टिकल 39A provides free legal aid to the poor and weaker sections of society and ensures justice for all। इस बेसिस पे अब हमारे पास नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया हुआ है। वी हैव द नेशनल सर्विसेज लीगल अथॉरिटी एक्ट, राइट, एंड इससे हमारा नालसा एस्टैब्लिश हो गया है, एंड द नालसा गिव्स बोथ क्रिमिनल एंड द नालसा आल्सो गिव्स सिविल प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। It was introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act. Perfect. And now we've completed with all the laws, all the particular articles which dealt with. So we've already completed with socialistic principles. Ab start hoga Gandhian principles, and then we will have liberal intellectual principles. So we can understand that Article 38, Article 39 and Article 39A deal with what is called socialistic principles. Now we will move on to Gandhian principles. Obviously, let me add over here, there are more articles to this category which we will be going on adding to this page. So I want you to leave a page in your copy whenever you are making your notes, and you need to write it just the way I am. So we've completed Article 38, Article 39, 39A, which are socialistic principles. Now we'll go to Article 40, which is a Gandhian principle. Now guys, Gandhiji was a very great man. I'm sure you know that Gandhiji was a great man. And Gandhiji had given to India what was known as the Swaraj model. Okay. इंडिया को उन्होंने स्वराज मॉडल दिया था, और इस स्वराज मॉडल से उन्होंने तीन चीजों पे एम्फसाइज किया था कि हमें सेल्फ रूल पाना है तीन चीजों से। सबसे पहला, स्वराज का एक मॉड्यूल बोलता है कि आपको ना सेल्फ रूल होना चाहिए। दैट इज, आपको अपने माइंड पे और अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। किसी और फॉरेन चीज यानी कभी फॉरेन लिकर या फॉरेन चीजों पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड, स्वराज मॉडल का जो सेकेंड पॉइंट था, दैट एम्फसाइज्ड on freedom from alien rule, कि भाई आपको बाहर वाले, आपको ब्रिटिश वगैरह को हटाना है, आपको अपना गवर्नमेंट जो है वो खुद से चलाना है। और इसका एक थर्ड एस्पेक्ट था, एंड ये एस्पेक्ट का था दैट यू शुड गिव बैक पावर, यू शुड गिव बैक पावर बैक टू द पीपल। ये मत समझ लेना कि इससे गांधी जी का मतलब था कि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी करो। यहाँ पे गांधी जी बोलते थे दैट देखो, समझ लो आप एक गांव के निवासी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान में रहते हो, यू आर अ पर्सन हु स्टेज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब आप अगर राजस्थान में रहते हो और आपको पता है कि भाई यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, देयर इज अ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये जो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी,
आपके राजस्थान में, ये वहां के लोकल लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जो गांव वाले हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसका दुख उन्हें ज्यादा पता होगा। और अगर उसका दुख उन्हें ज्यादा पता होगा तो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो वही दे पाएंगे, राइट? ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग तो उन्हें ही समझ में आएगा। सो तो दैट इज द रीजन कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ के लोकल लोगों को जानी चाहिए। Now before going into that and trying to I want you to understand this. देखो डेमोक्रेसी जो होता है, the democracy we have is divided into two parts. One is direct democracy, okay? And Gandhi ji never said that we should have referendum. He never said that. ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि हमें हमें ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करनी चाहिए। मतलब the people who should be acting, you know, they should be the main people, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत है तो उन्हें उनका दर्द पता है, तो they will be able to act in a better manner. And that is the reason that then a government should be created. Government का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए which is much more close to the people. तो गांधी जी never said that we should have direct democracy. He was in fact against direct democracy. उन्होंने बोला एक गवर्नमेंट बनाओ एंड ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों के दिल के पास होनी चाहिए. So he advocated, गांधी जी advocated what is known as proximate transfer of power. Proximate transfer of power. And he said that एक काम करो, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाओ. देखो हमारे पास ऑलरेडी दो टीयर्स हैं, एक हमारे सेंट्रल है और एक हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट है. तो हमें क्या करना है, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना है. याद देना, बनाना नहीं है, क्योंकि पंचायत जो थे वो सालों से थे. तो गांधी जी या हम या आप कौन होते उन्हें बनाने वाले? पंचायत आर अ वेरी ओल्ड टूल ऑफ इंडियन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने बोला लेट अस टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. विलेज पंचायत को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्हें थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के जैसा बनाते हैं और इन्हें इतना पावर और इतना अथॉरिटी देते हैं ताकि ये यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर पाए. Guys, it is because of this Gandhian principle that the 73rd Constitution Amendment Act was passed, which enabled the organization of village panchayats. So do you see guys, हमने जितने भी अभी तक laws देख रहे हैं, all of them have been made keeping in mind the efficiency and the directions given to the government through the directive principles of state policy. Okay, now let's go forward and understand three more articles. That would be the end of the class today. So now we would be discussing what is known as Article 41, Article 42 and Article 43. Now, Article 41, 42, 43 are related to work. ये सीधी बात बोलता है कि एक इंसान को राइट टू वर्क है. सी नाउ द वर्ड हियर राइट इज मेंशन्ड. तो अगर आपको कोई बोलता है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी भी इंडिविजुअल का राइट है, यस यस इट इज अ राइट. सर्टेन में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन बहुत सारों में डायरेक्टली ये बात मेंशन कर दी गई है. सो आर्टिकल 41, 42, 43 आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू वर्क एंड कंडीशंस ऑफ वर्क. ओके, सो ये जो वर्ड है राइट, इट हैज एक्चुअली बीन मेंशन्ड ओवर हियर कि हर इंसान को राइट टू वर्क है. ओके, तो राइट टू वर्क हमें कैसे मिलता है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. राइट टू वर्क हमें कैसे मिलता है? राइट टू वर्क, अगर आपको याद है, वी हैव समथिंग नोन एज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट? वी हैव द मनरेगा एक्ट. और अगर आपने देखा है कि हर इंडिविजुअल को पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए, राइट? एनी इंडिविजुअल शुड गेट पब्लिक असिस्टेंस एंड एजुकेशन. सो एजुकेशन का तो आई एम वेरी श्योर आप सबको पता है कि भाई एजुकेशन जो है इट इज कवर्ड इन आर्टिकल 21A ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. एजुकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. चलिए हम आगे सर्टेन केसेस, ये वाला जो वर्ड है सर्टेन केसेस को समझने की कोशिश करते हैं. भाई आप रिटायर्ड हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, राइट? आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? आपको तो आर्टिकल 37 ने रिटायर कर दिया, 38 ने रिटायर कर दिया, अब आप क्या करोगे? सॉरी, आर्टिकल 39 ने रिटायर कर दिया, अब आप क्या करोगे? तो भाई आपके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अटल पेंशन योजना, राइट?
पेंशन योजना। अगर आप एक पर्टिकुलर फार्मर हो, राइट, आप एक फार्मर हो और आपका क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे इन्फेस्टेशन हो गया है, तो भाई मैं अपने क्रॉप को कैसे बचाऊंगा? मैं तो इस क्रॉप को बना रहा हूं ताकि पूरा इंडिया खा पाए। तो भाई इसके लिए सीधा तरीके से बोला गया कि फसल बीमा योजना दे दो, राइट। भाई फसल बीमा योजना है कि आपका फसल खराब हो जाएगा, आपके लिए एक इंश्योरेंस रेडी है, यू विल बी पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट। अच्छा, अब यहां पर सुनो, the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, and other cases of undeserved want. सुनो, तो मैं आपको, आप समझ लो वापस से कोई इंडिविजुअल है जो कनाडा जाता है, वहां पर वो देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो काम नहीं करता उसे $1000, उसे $1000 अ मंथ दिए जा रहे हैं। अब वो हिसाब लगाते हैं कि यार ये जो इंडिविजुअल है इसको 70,000 रुपए मिल रहे हैं इनके गवर्नमेंट से, अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज मिल रहे हैं, और मैं यहाँ इंडिया में जो काम कर रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट जो है ना वो मियरली 7,000 दे रही है, तो ये गवर्नमेंट मेरे साथ तो गलत कर रही है। नहीं गाइस, इसका एक पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट का जितना पैसा है वो आपको इतना ही देगा ना। सो मेरे पास अगर आपको देने के लिए 7,000 रुपीज है तो मैं आपको सिर्फ 7,000 ही रुपीज दे पाऊंगा मनरेगा के अंडर, राइट। भाई कनाडा में पेंशन जो है, एक पेंशन इंसान को 1 लाख रुपीज, 1 लाख इक्विवेलेंट, इतना पैसा मिलता है कि वो 1 लाख इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज है। भाई इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में हम मैक्सिमम आपको 20,000 पेंशन दे सकते हैं। See, I'm just giving hypothetical numbers to you to make you understand कि स्टेट अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में ही पैसे दे सकती है अपने इंडिविजुअल्स को। भाई मेरे पास जितना पैसा होगा मैं इतना ही दूंगा ना, ओके ओके। अब भाई अब आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आपके अनएम्प्लॉयड हो, मैं आपको मनरेगा दूंगा, आई विल गिव यू मनरेगा। आप ओल्ड एज हो, मैं आपको पेंशन दूंगा, राइट। आपकी आप सिक हो गए हो, आप यू आर इन सिकनेस एंड यू आर डिसेबल्ड, मैं आपको आई विल गिव यू व्हाट इज नोन एज रिजर्वेशन, ओके। और भाई अगर बाय द वे आपका आपका ये मर गया, आपका क्रॉप्स मर गया, मैं आपको फसल बीमा योजना देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप ये भी देखते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स देते हैं, राइट। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा देता है, हरियाणा गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा फसल बीमा योजना में थोड़ा ज्यादा अमाउंट देता है, लेकिन बंगाल में इतना नहीं देता। तो आप गवर्नमेंट को जाके बोलोगे अरे हरियाणा को ज्यादा मिल रहा है, बंगाल को क्यों कम मिल रहा है? तो बंगाल वापस आपको दिखाएगा आर्टिकल 41, 42, 42 देख लो। भाई हमारा इतना ही इकोनॉमिक कैपेसिटी है, इतना ही पैसा है, तो इतना ही आपको मिल सकता है। सो ऑल दिस, इवन व्हेन यू आर सीइंग दैट डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया आर गिविंग डिफरेंट अमाउंट्स of बीमा, of amount of insurance और different amount of working to people, वो सारे डिपेंड करते हैं स्टेट के डेवलपमेंट और उनके इकोनॉमिक कैपेसिटी के ऊपर। अब चलिए हम लोग थोड़ा और इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आवर फोरफादर्स वांटेड। नाउ सी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में हमें क्या बोला गया कि भाई यू हैव द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके। देयर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे, राइट। कि भाई एंड देयर वर 2 इंपॉर्टेंट केसेस जिसका मैं नाम अभी बता देती हूँ। दैट इज द मेनका गांधी केस, ठीक है, मेनका गांधी केस जिसके बारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड वी हैव द फ्रांसिस क्रुएला केस। तो फ्रांसिस क्रुएला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो देखो, अगर एक इंडिविजुअल है और वो अपने पैसे कमा रहा है, राइट, इफ देयर इज एन इंडिविजुअल एंड ही इज अर्निंग मनी, तो वो बिना चोरी किए, बिना चमारी किए, बिना कुछ गलती किए वो अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सक रहा है, राइट। सो राइट टू वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू हिज डिग्निटी, राइट। तो हर इंडिविजुअल को काम करने का ये डिग्निटी आर्टिकल 21 देता है। सो इट इज एनश्राइंड, राइट टू वर्क इज इन अ वे एनश्राइंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21। अब देखो एक केस हुआ,
आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा व्हेन यू गो टू बॉम्बे कि बहुत सारे वहां पे पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, राइट। बहुत सारे आपके पेवमेंट में मतलब रास्ते में सोए हुए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और इस केस को बड़े बड़े फेमस तरीके से हम बोलते हैं द बॉम्बे पेवमेंट ड्वेलर केस। याद रखिएगा, बॉम्बे की सड़कों में जो लोग रहते हैं, पेवमेंट मतलब फुटपाथ पे रहने वाले, पेवमेंट ड्वेलर्स केस। तो अब ये जो पेवमेंट ड्वेलर्स यहाँ पर रहते हैं, ये वहाँ पे छोटे छोटे अपने ऐसे छोटे 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 आपके दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी रेडियां लगाते हैं, जिससे इनका काम चलता है, इनका लाइफ चलता है। ओके, तो अब एक बार क्या हुआ, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत बड़ा सा दे बॉट दिस रिमूवर, और उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे पेवमेंट ड्वेलर्स को हटाओ, ये जो रास्ते में सारे के सारे रेडियां लगी हुई है, इन सारे रेडिया को हटाओ। एंड दिस केस was known as the Bombay pavement dwellers case, very famously known as the Olga Tellis versus the Bombay Municipal Corporation of the year 1986. Okay. तो यहाँ पर pavement dwellers ने, Olga Tellis was actually an NGO which was fighting on the behalf of these pavement dwellers. तो वो आके बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, ये रास्ते में रह रहे हैं, और इन आपने ही तो बोला है, आप ही ने तो बोला है फ्रांसिस क्रोएला केस में कि भाई आर्टिकल 21 के तहत राइट टू वर्क जो है वो एक इंसान के डिग्निटी के साथ डील कर रहा है, राइट। आपने ये बोला है कि मेरा राइट टू वर्क है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41 ने भी मुझे ये बोला है कि आई हैव अ राइट टू वर्क, तो आप मेरा ये राइट टू वर्क कैसे छीन सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा मेरी बात सुनिए, this case that you're talking to me about, okay, this case that you're talking to me about and you're telling me कि मैंने राइट टू वर्क दिया है, बराबर मैंने दिया है, मैंने डेफिनेटली दिया है, मगर आपको ये समझना होगा that fundamental rights are not absolute in nature. मैं इसे, ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको राइट टू वर्क दूं, राइट। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें तो एक्सेप्शंस लगे हुए हैं। अगर ये पेमेंट ड्वेलर्स अपने शॉप्स को रास्ते में लगाएंगे तो ये जो बड़े बड़े दुकान खरीद के, जो हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं जो 40-50 लाख रुपए खर्चा करके यहाँ पर अपना दुकान लगाए हैं, उनका बिजनेस तो पूरा फ्लॉप हो जाएगा, राइट। तो ये उनके साथ भी तो हम गलत कर रहे हैं ना। सो इफ द पेमेंट ड्वेलर्स आर आर पीपल, ये अगर हमारे लोग हैं, तो भाई ये जो दुकान लगाकर बैठे हैं, these are also citizens of India and they have worked very hard to get a small shop that they have on these Bombay pavement roads, right? तो भाई इन्होंने बोला भाई ये तो इट इज नॉट राइट, और ये जो हमने हटाया है ये तो हटावा ही रहेगा, यहाँ पर तो आप वापस से अपनी ये रेडिया नहीं लगा सकते। तो पेमेंट ड्वेलर्स ने बोला ठीक है, वो गए स्टेट के पास, और स्टेट के पास जाकर बोला भाई देखो मेरे पास राइट टू वर्क है, मेरा काम जो है वो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझसे छीन लिया है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझसे छीन लिया, मेरे पास अब कोई काम नहीं है। सिंस मैं अब रास्ते में, मैं इस पर्टिकुलर रास्ते में नहीं लगा सकता हूँ अपनी रेडिया, यू गिव मी लैंड, तुम मुझे लैंड दो, तुम मुझे लैंड दो, और इस लैंड में मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, राइट। तो यहां पर स्टेट ने बोला नो, आई कैन नॉट गिव यू द लैंड। तो इन्होंने बोला अरे क्यों, मेरा राइट टू वर्क है यार, आर्टिकल 21 में इट हैज बीन टोल्ड टू मी दैट इट इज माय राइट टू वर्क। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं हम आपको लैंड नहीं दे सकते, बिकॉज आई डू नॉट हैव द इकोनॉमिक मीन्स टू डू सो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको कहां से दूंगा। सो इन द गुरचन कौर केस गाइस, गुरचन कौर केस, बॉम्बे पेमेंट ड्वेलर्स ने बात किया कि भाई हमें जो है, हमें भाई लैंड दे दो, हम कहीं और अपना काम सेटअप कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि द राइट टू वर्क इज explicitly mentioned in the directive principles of state policy, and the directive principles of state policy are based on two very important factors. The first one is intention and the second one is the availability. So in case we see that we do not have the availability, we will not be able to support you, we will not be able to give you land, because we do not have the ability to do so.
All right. So guys, with this, we are ending this lecture. There will be two more parts, 1 to 2 more parts on directive principles of state policy, wherein we'll be discussing Article 42 to Article 51 during this point of time. All right. So thank you guys. Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. Bye-bye.